Hello dear students, in previous lecture we have discussed about the key point of electromagnetism, which is charge. So now today's topic is Coulomb's law, and we will discuss about the various type of problems based on Coulomb's law. Okay, so Coulomb's law. Coulomb's law states that if there are two charged particles, suppose Q1 and Q2, are placed at a central distance r, then the force of interaction between Q1 and Q2 always proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. If I am going to combine these two concepts, then F will always was proportional to Q1 Q2 upon R square. Q1 Q2 upon R square. And now we have to remove proportionality sign. So for that we will use a proportionality constant for Coulomb's law, which is denoted by K. So F equals to K Q1 Q2 upon R square. But we know force is a vector quantity, so it having a magnitude as well as direction also. But here we will discussing about magnitude only. Okay. So this is the force of Coulomb's law, electrostatic force, which is given by K Q1 Q2 upon R square. Here K is a proportionality constant for Coulomb's law, and K always equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, and epsilon naught permittivity of free space, whereas the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. Okay, and R central distance. R is central distance between charges. We have two charges, and Q1 and Q2 charges of each particle, Q1 and Q2. Okay, so by putting the value of epsilon naught we are going to solve, then we will get the value of K is 9 into 10 raised to power. So 9 into 10 raised to power 9. The unit of K is Newton meter square per Coulomb square, and epsilon naught Coulomb square per Newton meter square. And we will calculate dimension also accordingly to epsilon naught and K. Till here we have discussed. Okay, so right now I am going to discuss so many more points about Coulomb's law. Okay, see the particle. Suppose both charged particles. I told you earlier that if the both charges having same nature, then they will repel each other. If both charges having opposite nature, then they will attract each other. Suppose both charges having same nature, then Q2 will repel Q1. Okay, if both charges having same nature, then they will repel to each other. So force of electrostatic force on particle 1 due to 2 will be in this direction, and Q1 also repel to Q2, so Q2 feels experience a force F21 in this particular direction. Okay, see F12, if I am going to write down the magnitude of F12, which one will be equals to K Q1 Q2 upon R square, and F21, which one also be same K Q1 Q2 upon R square. Why same? Because the central distance between Q1 and Q2 same, and the product of Q1 Q2 will be also same. So we can say both the charges experiences same force, but in opposite direction. Suppose I am going to consider a Q1 as positive and Q2 negative. Q1 positive and Q2 negative at a central distance R. Then when Q1 and Q2 are having opposite polarity, then they will attract each other. So the Q1 will experience a force in this particular direction. So F12 in इस डायरेक्शन के होगा, और 2 जो है बेटा Q2 जो है नेगेटिव चार्ज है, तो Q1 अट्रैक्ट करेगा, तो किस डायरेक्शन में फील करेगा? इस डायरेक्शन में. सी अब यहाँ भी F12 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? F21 के बराबर होगा, और कितना होगा? सी K Q1 Q2 upon R स्क्वायर. मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है. बट अगर एक Q1 पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो Q2 पे अपोजिट. इट मींस क्या है कि डायरेक्शन जो है वो क्या है? अपोजिट है. मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है,
और डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है. सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दीज 2 points दैट electrostatic force is an action reaction pair. Electrostatic force is an action reaction pair. Electrostatic force is an action reaction pair. Okay. See, F of E, electrostatic force acts between two charged particles. F of E acts between two charged particles. If we are going to elaborate electrostatic force, then we should require minimum two charged particles. Okay, so direction of force on both charged particles, the direction of force on both charges opposite to each other. The direction of force on both charges opposite to each other, and the magnitude of force is same. Magnitude of force on both charged particles is same. So we can say electrostatic force is an action reaction pair. Okay, the direction of force is always along the line joining to the charges. The direction of force is always to the line joining of charges. It means आपका ये जो इस पे Q1 पे फोर्स लगेगा, अगर वो रिपल्सिव है तो इस डायरेक्शन का लोड लगेगा, Q2 पे रिपल्सिव है तो इस डायरेक्शन का लोड. अगर ये लाइन जॉइनिंग है Q1 और Q2 को ऐड करने वाला, तो Q1 पे अगर ये अपोजिट पोलैरिटी के साथ है तो ये लाइन जॉइनिंग. So the direction of force acts along the line joining to the both charged particles. So we can say electrostatic force is a central force. Electrostatic force is a central force. It means the force experienced by the charged particles is along the line joining to their centers. Okay. Okay. And the next point, which is suppose we are going to place a number of charges, n number of charges. Suppose there are the charged particles are more than two, like 3 or more. Okay, see, suppose this one, the charged particle Q1 is placed and Q2 placed at a central distance, suppose R. Central distance R. Suppose both charges are having positive nature, then Q1 repel to Q2 F12, and Q1 repel Q2 and Q2 repel Q1. So F of 2 1. See, we know F of 1 2 having same magnitude to F of 2 1, which is equals to K Q1 Q2 upon R square, which is equals to K Q1 Q2 upon R square. Suppose now I am going to place a third charge particle. Now I am going to place a third charge particle Q3 at any point. Q3 at any point. Suppose I am going to put a third charge particle Q3 at this particular location. Okay. So the main question arises over here. The net force on Q1 or Q2, the net force on Q1 or Q2 in presence of Q3 will changes. In presence of Q3 will changes. Suppose Q3 having positive nature same as Q1 and Q2, so Q3 will repel to Q1. Q3 will repel to Q1. So Q1 experience an additional force, repulsive force by Q3, which is F13. Okay. And same as Q2 also experience additional force in presence of Q3. This will along line this. So F23. Okay. So the net force on Q1 or Q2 in presence of Q3 changes. The net force on Q1 or Q2 in presence of Q3 changes. In presence of Q3 changes, but the net force. But see, net force on Q1 or Q2 in presence of Q3 changes. The net force on Q1 or Q2 in presence of Q3 changes, but force on Q1 due to Q2 only remain same. See कि Q1 पे जो नेट फोर्स था Q3 की प्रेजेंस में वो चेंज हो गया, क्योंकि पहले सिर्फ इसको Q2 रिपेल कर रहा था, अब Q2 Q3 दोनों रिपेल कर रहे हैं. बट मेरा जो स्टेटमेंट वो ये है कि Q3 है या नहीं है
उसका Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. इट मींस ये कि द नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2 इन प्रेजेंस ऑफ Q3 विल चेंजेस, but the force on Q1 due to Q2 only or on Q2 due to Q1 only will remain same. Okay, so these are the basic points which we have to remember in terms in addition of Coulomb's law. So right now I am going to ask you the very first and basic question. See, you have given that suppose there are two charged particles. Their charge is unknown and placed at a separation of 1 meter, r equals to 1 meter. See, there are two charged particles. Their charges is unknown, which is not given to us, are placed at a separation of 1 meter. Then we have to calculate. The f of E minimum. It means you have to calculate minimum electrostatic force experienced by these two charged particles. Suppose Q1 and Q2. So what will be the minimum interaction force between Q1 and Q2? You have to calculate. So this one numerical is based on properties of charge. As I told you earlier that if we know f of magnitude, force, electrostatic force is given as k Q1 Q2 upon r square, and here the value of r is 1, so our force will be k Q1 and Q2. See, we have to calculate the minimum force between Q1 and Q2, whereas k is fixed. So we have to minimize the product of Q1 and Q2. But I told you earlier in properties of charges that the minimum charge or minimum quantity of a charge which is electron, so for F minimum Q1 and Q2 should be minimum. और Q1 Q2 मिनिमम कितना हो सकता है? So Q1 equals to Q2 equals to इलेक्ट्रॉन के बराबर. So अगर I am going to put the value of Q1 Q2, so F minimum will be कितना हो जाएगा? K E square. Simple. See, we have to calculate the minimum force between two charged particles. So the product of the charges should be minimum, and the minimum charge, the minimum quantity of a charge is electron. So this is the concept of charge. Okay. See, I am going to consider another example. See, if there are three charged particles having charges Q, 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 or Q1, Q2, Q3, it doesn't matter that the polarity of charges or nature of charge Q1 and Q2 and Q3. What is okay? See, if I am going to example, if I am going to place three charged particles on a isosceles triangle. Okay. See, Q1, Q2, and Q3. Suppose the side of triangle is A, and A. See, now you have to calculate electrostatic force on any particle. Suppose let's consider we have to calculate the electrostatic force on Q3. Suppose all the charges are having same nature, positive and positive. Okay. So मैं बात करता हूँ कि अपना अगर Q3 है बेटा, so Q1 Q3 सेम नेचर है, तो Q1 Q3 को क्या करेगा? रिपल करेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा? F3 पे लगेगा 1 की वजह से, तो वो कितना होगा बेटा? तो आप बोलोगे K Q1 Q3 upon A square. Simply. Okay. See, Q2 also interact with Q3, and Q3 having same nature, then Q2 also repel Q3. Okay, so the repulsive force on Q3 will act in this particular direction, and F of electrostatic force on charged particle third due to second one will be a K Q2 Q3 upon
a square. K q2 q3 upon a square. Okay, see, we have to calculate net force. We have to calculate net force on q3. We have to calculate net force on q3, but we know that force is a vector quantity, so we have to add it with direction. So F net जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, F31 vector plus F31 vector plus F32 vector. Okay, so we know F31 vector and F32 vector. See, this is the addition of two vector quantities which can done by using parallelogram law, which can done by using पैरेललोग्राम लो. सो f वेक्टर जो है बेटा, अगर आपको सपोज करके आपके पास f1 और f2 में अगर इनको कंसीडर करना चाह रहा हूं तो इनका जो रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ f31 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का प्लस f32 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस प्लस 2f of 32 f of 31 cos theta. Whereas theta the angle between these two vectors, and we know all angles are same, so it will be 60 degree. So we will calculate accordingly by using parallelogram law. Okay, see, अगर if I am going to place a fourth charge particle Q4 at center, then what will happen? See, suppose Q1, Q2, Q3 are same, having same nature. Suppose another example, I am considering Q, Q, Q and Q are placed at the vertices of a triangle, vertices at a isosceles triangle, and another charge particle capital Q is placed at a center of this particular triangle. Okay, so we have to calculate the net force on Q, which is placed at center. Okay, see, this one Q, this Q will repel to this one Q. Okay, see, by a force, suppose F. Okay, this one Q will also repel. Okay, so ये भी F, और ये वाला Q भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये वाला भी F बनेगा. Okay, see, अगर ये तीनों फोर्स सेम है तो तीनों के बीच का एंगल भी सेम होगा. अगर तीनों वेक्टर क्वांटिटी सेम है और वो एक क्लोज सर्कल बना रहे हैं तो उन तीनों का क्या होगा, एंगल भी सेम होगा. अगर आपको बेटा याद हो तो मैंने आपको लामी थ्योरम पढ़ाया था. सी, अगर ये F है और ये F है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 120 हो जाएगा. ये वाला एंगल भी 120 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 120 हो जाएगा. अच्छा, दो वेक्टर है, दोनों 120 पे है, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो क्या 60 पे आएगा, और कितना आएगा, F ही आएगा. कैसे आएगा, मैं अगर आपको बताता हूँ कि F जो आएगा, F डैश मान लो, ये F डैश है ना, तो जो F डैश जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोसेक थीटा. सो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120. अच्छा, cos 120 को मैं लिख सकता हूँ बेटा sin 90 प्लस 30, sin 90 प्लस 30. अच्छा, sin 90 प्लस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस sin 30 लिख सकता हूँ. तो sin 30 बोलूंगा तो हाफ हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ डैश हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, f स्क्वायर चला जाएगा, तो f डैश क्या आ जाएगा, f डैश जो आएगा आपका f आएगा. मतलब अगर if there are two same vectors at angle 60, then at angle 120, then the resultant will be same as any one at angle of 60. See, now it has converted like this. See, f vector or f vector. See, we know if there are two forces at a point, then they will cancel out to each other. So f net on Q is 0. F net on Q is 0. So by this particular concept, we can say if any charge particle which is placed in a symmetric position, so then the net force on that particular charge will be 0. Okay, so another example. So you may consider, see, like if I'm going to ask you that this is a square
a charge particle is placed on the center of square, then it will, if the charges at vertices placed at vertices having same nature and same polarity, then the net force on Q, या center charge will be zero, center charge will be zero, or you can calculate either this one or this one. So many more examples are over there, so you may try to do. Okay, see, suppose the another type of questions are over there. Suppose I will ask you another type of example. Another type of example. Suppose there is a charge particle Q1. Suppose there is a charge particle Q1 which is fixed. Okay. And another charge particle Q2 which is free to move. Okay. See, Q1 को फिक्स किया है, Q2 जो है आपका वो फ्री है मूवमेंट के लिए, और सपोज करके ये R1 डिस्टेंस पे रखा है. किस पे रखा है? R1 पे रखा है. अच्छा, वी नो Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. Q2 पे एक फोर्स लगेगा, किसकी वजह से? Q1 की वजह से. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लगेगा. अच्छा, अब मैंने Q2 को रिलीज किया. मैंने क्या किया? Q2 को रिलीज किया. Q2 को रिलीज किया. तो मेरे को ये बताओ कि Q2 को रिलीज किया तो Q2 पे एक रिपल्सिव फोर्स है, जिसकी वजह से Q2 क्या करेगा? Q2 इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. Q2 का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? रिपल्सिव नेचर है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पार्टिकल ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन. सो इस पे फोर्स उस डायरेक्शन में है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है. तो अगर ये आपका पार्टिकल Q2 को रिलीज करूंगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा. ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ Q2. आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ सपोज कि इसका मास जो है बेटा m मास है. मास कितना Q2 का? m मास है. तो स्पीड ऑफ Q2 at distance R2 from Q1. क्या हुआ कि देख बेटा, ये यहाँ पे है तो R1 डिस्टेंस है. मान लो कि यहाँ जब R2 पे पहुंचा, तो इसकी स्पीड क्या होगी? विनो देखो, F अगर सपोज कि R बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? R बढ़ रहा है. अच्छा, R बढ़ रहा है तो F क्या हो रहा है? कम हो रहा है. R बढ़ रहा है तो F कम हो रहा है, लेकिन स्पीड तो बढ़ती जाएगी. क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड डिक्रीज होगी. एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, बट एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ती जाएगी. अच्छा, स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसके लिए आप क्या करोगे? सोचो, आपने मान लो कि एक जनरल पॉइंट ले लिया, आपने कंसीडर कर लिया कि एक जनरल पॉइंट, इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर अ जनरल पॉइंट, सपोज जनरल पॉइंट लिया मैंने, आपको वो ले लिया यहाँ से R डिस्टेंस. अब ये वाला डेटा मैं हटा देता हूँ. ठीक, सी, मैंने अगर फ्री टू मूव है, रिलीज किया है R1 से, रिलीज किया है. ठीक है, मैं कंसीडर करता हूँ कि Q2 से एक डिस्टेंस पे चला गया, R पे चला गया. कितने पे चला गया? एक डिस्टेंस R पे चला गया. अच्छा, R पे चला गया तो R पे इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो F लगेगा KQ1 Q2 अपॉन R2. अच्छा, फोर्स ये है, और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन क्या होगा इस पार्टिकल का? तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा KQ1 Q2 अपॉन mR2. अच्छा, एक्सेलरेशन आ गया तो मुझे क्या चाहिए? मुझे स्पीड चाहिए. स्पीड चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड चाहिए तो मैंने क्या करना पड़ेगा? अच्छा, वी नो, स्पीड की बात करता हूँ. स्पीड आपको दिया जाता है बेटा, आप लिखते हो एक वस्तु v dv by dx या v dv by dr.
अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन लग रहा होगा बेटा, अगर मैं इसको वेरीफाई करवाना चाहूँ तो अगर a जो जनरली होता है तो a क्या होता है, b dv by dx। अच्छा मैंने b को क्या लिख सकता, अच्छा मैंने a को एज इट इज रखा, सो मैं b को क्या लिख सकता हूँ, अच्छा मैं b को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, dx by dt, b को लिख सकता हूँ ना dx by dt। अच्छा dv जो है dv by dx एज इट इज रख दूँ, क्या रख दूँ, dv by dx एज इट इज रख दूँ, है ना। सो dv by dx रखूंगा तो dx से dx कैंसिल आउट हो गया, dv by dt, तो a क्या होता है, dv by dt। इट मींस मैं a को जो है अनदर टर्म्स में लिख सकता हूँ v dv by dx, v dv by dx। अच्छा यहाँ मैं a को लिखना चाह रहा हूँ तो a क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ a जो हो जाएगा v dv by dr। अगर मैं यहाँ r लेना चाह रहा हूँ, अगर मैंने जो आपका एलिमेंट वेरिएबल लिया वो r के टर्म्स में लिया तो v dv by dr। अच्छा a को v dv by dr बोल सकता हूँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि v dv जो होगा वो क्या हो जाएगा, a डॉट dr हो जाएगा। अगर मैं इनको इंटीग्रेट करता हूँ, अगर मैं इनको इंटीग्रेट करता हूँ तो इनिशियल स्पीड कितनी थी यहाँ जब रिलीज किया तो 0 थी, और मान लो फाइनल स्पीड v है, फाइनल स्पीड v है। अच्छा इनिशियल में r कितना था बेटा, r1 था और फाइनल r कितना है, r2। सो वी हैव टू integrate and calculate the speed at particular location r2। ओके अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ तो देखो इधर से क्या हो जाएगा बेटा, आपका यहाँ से हो जाएगा v और dv का हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, तो ये v स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। अच्छा a का वैल्यू रखता हूँ, a का वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा बेटा r1 से r2 तक a का वैल्यू क्या है, k q1 q2 अपॉन r है, k q1 q2 अपॉन r square है। अच्छा k q1 q2 upon r square dot dr। Here k q1 and q2 all these are constants। Okay, so I'm going to set outside from the, okay, so v square by 2 equals to k q1 q2 integration dr upon r square, dr upon r square, r1 से r2। okay, we know integration r की पावर, अगर r की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, r raised to power n dot dx क्या होता है, या dr जो होता है बेटा वो होता है r की पावर n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अगर मेरी आपका लिमिट नहीं है तो, अगर लिमिट है तो r की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है r की पावर n plus 1 divided by n plus 1। हियर n क्या है बेटा, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करने जा रहा हूं तो n क्या है -2। ओके सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने चाह रहा हूं तो ये हो जाएगा बेटा v square by 2, v square by 2 equals to k q1 q2, k q1 q2, और ये आपका जो बनेगा तो ये बनेगा, देखो लिमिट एज इट इज रखता हूं मैं, इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आपका इस ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा r की पावर -2 plus 1 डिवाइडेड बाय -2 plus 1, है ना, -2 plus 1 -2 plus 1। अच्छा लिमिट कहां से कहां, r1 से r2, लिमिट रखी है मैंने r1 से r2। अगर मैं उसको सोल्व करने जा रहा हूं तो मेरा जो बन रहा है बेटा v square by 2 equals to k q1 q2, और वो बन जाएगा बेटा -1 upon r। देखो यहां बन गया, ऊपर जो बन रहा है वो बन रहा है r की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। अच्छा ये r1 से r2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 अपॉन r, तो ये v स्क्वायर क्या बन गया 2k q1 q2, और ये बन गया था आपका r1 से r2, तो ये बन गया -1 अपॉन r, -1 अपॉन r। अच्छा -1 अपॉन r, अच्छा तो मैं माइनस को बाहर रख लूँ, मैं माइनस को बाहर रख लेता हूँ, अपर लिमिट लगाता हूँ r2 -1 बाई r1, लोअर लिमिट के साथ माइनस एज इट इज रखा। अच्छा मैंने v स्क्वायर 1 है तो ये बन गया 2k q1 q2। अच्छा मैं माइनस को अंदर ले जाता हूँ 1 बाई r1 -1 बाई r2, 1 बाई r1 -1 बाई r2। अच्छा मुझे v चाहिए तो v क्या आ जाएगा यहाँ से, 2k q1 q2 1 बाई r1 -1 बाई r2 का स्क्वायर रूट। ओके सो देखो लॉजिक सिर्फ फोर्स का है, फोर्स के बाद तो आपका 11th है कि फोर्स इक्वल्स टू m में होता है, a इक्वल्स टू v dv by dr और v dv by dx से इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू रखेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सपोज करके देखो r2 बढ़ता जाएगा, r2 बढ़ता जाएगा तो स्पीड बढ़ती जा रही है, r2 बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि स्पीड कम होगी, स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस, स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल्स, let's see another type of example। see another type of problems which are the Coulomb's law, equilibrium problems। see equilibrium problems, how many type of equilibrium are there, 3 type of equilibriums। I told you earlier that in 11th standard na stable, unstable and neutral, stable, unstable and neutral। so equilibrium problems which are present on Coulomb's law। see
if I'm going to put two charge particles, suppose Q1 and Q2, सपोज एग्जांपल की बात करते हैं बेटा आपसे, तो सपोज कि मेरा चार्ज पार्टिकल Q1 is placed at this particular location and Q2 is placed at this particular location. Q2 is placed at this particular location. Okay, the distance between Q1 and Q2 is R. Q1 and Q2 is R. Okay, so now we have to place the third charge particle. So we can place it on the line joining outside Q1, first location, on the line joining outside Q2, second location, on the perpendicular line to line joining, third position, fourth position, or on the line joining anywhere, so fifth position. So we have to check the stability or equilibrium of a third charge particle or a third charge particle at different locations. Okay, so after that we will conclude. After that, based on this particular example, we will try to solve directly. Okay, see, if I am going to put a third charge particle, suppose Q1 and Q2 having same nature. So case first अगर मैं जब बात करना चाह रहा हूँ कि Q1 Q2 same nature के हैं, if both charges having same nature, then we have to put at what location a third charge particle Q3. So it will be in equilibrium. Okay, so this is the basic type of examples or problem which may asks you. Okay, so Q1 और Q2 अगर same nature है, Q1 Q2 क्या है, same nature, suppose positive, थर्ड चार्ज पार्टिकल अपना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. अगर मान लो कि Q3 जो है वो पॉजिटिव है, Q3 क्या है, पॉजिटिव. अगर मान लो और मैंने उसको यहाँ रखा तो इसको Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा. पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा. अच्छा, Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा. मतलब इस पे एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शनल फोर्स लगा. मतलब ये तो स्टेबल नहीं है, यहाँ तो स्टेबिलिटी मिल ही नहीं सकती. अच्छा, स्टेबिलिटी नहीं है ना, फिर स्टेबिलिटी के इक्विलिब्रियम तो बाद में चेक करेंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, बट अपन इक्विलिब्रियम तो चेक करें कि है कि नहीं है. अच्छा, इस पॉइंट पे तो नहीं. सिमिलर लाइक दिस पॉइंट, अगर मैं Q3 अगर नेगेटिव होता तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव होता तो दोनों रिपेल करते हैं. मतलब स्टेबिलिटी नहीं. अगर मैं यहाँ बात करूंगी, अगर मेरा Q3 पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, और Q3 नेगेटिव है तो Q1 Q2 दोनों बहुत अट्रैक्ट्स टू Q3. सो ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है. इक्विलिब्रियम इट मींस नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो, बट हियर रोटेटरी एफर्ट तो नहीं है फोर्स का. सो अपन नेट फोर्स की बात करेंगे, टॉर्क तो है ही नहीं. सो नेट फोर्स क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, जीरो होना चाहिए. नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए. अगर नेट फोर्स ही जीरो नहीं है तो टॉर्क की बात तो बात की है. ठीक है, ओके. सो ये भी स्टेबल नहीं है. अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि अगर मान लो मैंने यहाँ ये Q3 पॉजिटिव है, सो Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा. Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा. एक नेट फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, जाएगा, तो ये भी स्टेबल नहीं. अगर मान लो Q3 नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, कहीं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा. मतलब ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो चार्ज सेम नेचर अगर सेम इस पॉइंट की तरह यहाँ भी अगर रिपल्सिव होगा, सेम नेचर होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ऊपर जाएगा. अगर अट्रैक्ट दोनों अपोजिट नेचर के साथ होगा तो ये नीचे आएगा. तो ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता. मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ऑन द लाइन जोइनिंग बिटवीन देम. This is the conclusion. ये conclusion क्या है? If the two charges having same nature are placed at a central distance r, then the equilibrium for third charge particle on the line joining between them. It means क्या हुआ कि अगर मेरे को थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है तो वो लाइन पे ही कहीं बीच में कहीं हो सकता है. सपोज करके मैंने यहाँ से यहाँ मैंने x डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये वाला कितना होगा बेटा, r - x. अगर ये वाला x डिस्टेंस रखा और नेट तो क्या था r. अगर मैंने यहाँ Q3 रख दिया, क्या रखा, Q3 पॉजिटिव और नेगेटिव एडजसेंट. अगर मान लो Q3 पॉजिटिव है तो Q2 क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, और Q1 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा. अगर मान लो Q3 नेगेटिव है
तो ये Q1 अट्रैक्ट करेगा, Q3 भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ नेट फोर्स 0 हो सकता है। सपोज करके मैंने कंसीडर कर लिया कि मैंने Q3 को कहाँ रखा, अक्ष पे रखा, ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। अच्छा Q1 जो है, मान लो कि वो दो पॉजिटिव है, तो Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा तो ये F31, ठीक है। अच्छा ये कौन, F32, दोनों रिपेल करेंगे ना। Q3 बेटा यहाँ रखा, तो Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और Q2 भी रिपेल करेगा। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाए, और वो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट मींस क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए F32 और F31 सेम होना चाहिए। इट मींस फॉर इक्विलिब्रियम F of 32 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम चेक कर चुके हैं किससे, साइन के साथ, तो डायरेक्शन तो हम देख चुके हैं ना, अपने नेचर के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन चेक कर चुके हैं। सो F32 जो सेम होना चाहिए किसके, F31 के सेम होना चाहिए। अच्छा F32 इट मींस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल था ड्यू टू 2 विल बी K Q3 Q2 अपॉन K Q2 की वजह से तो R माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा Q3 पे Q2 की वजह से फोर्स है, तो K Q3 Q2 अपॉन डिस्टेंस विच इज R माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा इट शुड बी इक्वल्स टू F of 31। अच्छा F of 31 इट मींस K Q3 Q1 अपॉन x स्क्वायर, K Q3 Q1 अपॉन x स्क्वायर। अच्छा K से K कैंसिल आउट हो गया, Q3 से Q3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया Q2 अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 अपॉन x स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब ये सोचो कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Q1 और Q2 में से, Q1 और Q2, देखो Q3 तो कैंसिल आउट हो गया, इट मींस Q3 की नेचर पे और Q3 की चार्ज पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, ये डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है Q1 और Q2 की नेचर और चार्ज पे। हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर Q1 Q2 सेम नेचर, इफ Q1 and Q2 having सेम नेचर, इट मींस Q1 Q2 या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो वो वाला केस यूज करें। Q3 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ओके सो Q2 अपॉन R माइनस x स्क्वायर इक्वल्स Q1 अपॉन x स्क्वायर। अच्छा आपके पास क्या गिवन है, Q2 Q1 गिवन है, आपके पास R गिवन है, आपके पास वेरिएबल कौन है, x अननोन है। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक बनेगी सॉल्व कर सकते हैं। या सपोज कि अगर मैं बोलता हूं कि Q1 बड़ा है, सपोज कर कि Q1 बड़ा है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट Q1 से दूर होगा, Q2 बड़ा है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट Q2 से दूर होगा। सपोज करके इफ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q हो जाए, कि अगर ये दोनों सेम हो जाए, Q हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन x स्क्वायर। अच्छा Q अगर मान लो कि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम है, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इनको स्क्वायरिंग रूट कर दूं तो R माइनस x इक्वल्स टू x हो जाएगा, स्क्वायरिंग, अरे बेटा स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर में कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो ये R माइनस x इक्वल्स टू x, तो R क्या हो गया 2x, तो x कितना हो गया R by 2। We know if both charges having same magnitude, then the midpoint of that particular, the midpoint will be as equilibrium point. Okay, so we can calculate. See, आपको नोट क्या करना है, स्टार्ट ना करके, if both charges having same nature, then the equilibrium point for a third charge particle, whatever its nature, third charge particle ब्रैकेट में लिखोगे whatever its nature, it means the equilibrium point does not depends on the nature and magnitude of Q3. It means आपका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना है Q3 का, doesn't matter. So if the both charges are having same nature, Q1 and Q2 having same nature, then the equilibrium point for a third charge particle Q3 on the line joining between them, okay. So ये आपने कंसीडर करना। Suppose both charges having opposite nature, so the next type of problem, if both charges having opposite nature, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं बेटा। सपोज करके ये वाला जो है Q है, कितना है Q है, और ये वाला मान लो बेटा आपका जो है 3Q, कितना है 3Q है, और ये मान लो कि माइनस का, ये किसका है माइनस का 3Q। बोथ चार्जेस हैविंग अपोजिट नेचर, प्लेस्ड एट द सेंटर डिस्टेंस सपोज R,
अब मैंने थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है Q3, मैंने Q3 को रखना है तो मुझे इक्विलिब्रियम चेक करना है। तो आपके माइंड में सबसे पहला तो वही जाएगा, हो सकता है इन दोनों के बीच में कहीं रहा हो। अगर मान लो ये R है, क्या है R, अगर मान लो मैंने यहाँ Q3 को कहीं रखा, मैंने Q3 को कहीं रखा, मान लो ये x, तो कितना हो जाएगा R माइनस एक्स, क्योंकि पुराना प्रीवियस आपने सोचा तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको ये लॉजिक लगाना चाहिए तो Q3 को Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा, और Q3 को माइनस Q3 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स हो ही नहीं सकता जीरो, क्योंकि Q1 क्या चाहता है कि Q3 दूर जाए, क्योंकि सेम नेचर है और सेम नेचर में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो सेम नेचर Q3 को Q1 क्या करेगा, Q क्या करेगा, रिपेल करेगा, और 3Q क्या करेगा, माइनस वाला, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बीच में तो कहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा बीच में नहीं हो सकता तो ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सपोज करिए ये, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर नहीं जाएगा, सेम सिमिलर यहाँ पे। अच्छा तो हमारे पास दो लोकेशन बचते हैं, वो तो आउटसाइड बचते हैं, आउट ऑन द लाइन जॉइनिंग आउटसाइड। तो ऑन द लाइन जॉइनिंग आउटसाइड देखते हैं हम। सी ये आपका Q जो रखा है और ये आपका माइनस 3Q रखा है। अच्छा आउटसाइड लाइन जॉइनिंग यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अच्छा पहले मैं ये वाला बात कंसिडर करता हूँ, ये वाला सपोज कि मैंने यहाँ से ये वाला तो R डिस्टेंस था, यहाँ से मैंने X डिस्टेंस पे रखा, कितने पे रखा, X पे मैंने यहाँ Q3 को रखा। अच्छा Q3 को ये वाला Q क्या करेगा, रिपेल करेगा। इट मींस मैं इसको मान लो कि नाम दे Q3, ये वाला रिपेल करेगा, इसको F1 नाम देगा, ठीक। अच्छा ये वाला 3Q माइनस का है, इस Q3 को क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। मान लो क्या, अगर मान लो Q3 नेगेटिव है तो ये 3Q माइनस वाला रिपेल करेगा, वो वाला अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनने की, अगर ये दोनों फोर्स सेम हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाए। अगर मान लो मैं इधर भी सोचना चाहूँ कि मैंने यहाँ Q3 को रखा, Q3 पॉजिटिव है तो ये Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा, और Q3 पॉजिटिव है तो ये 3Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लो Q3 नेगेटिव है तो ये Q अट्रैक्ट करेगा और ये 3Q रिपेल करेगा। मतलब यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बाद में आपने एक स्टेटमेंट लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ एक ही लोकेशन पे जाना है, दोनों लोकेशन को आपके चेक नहीं करना। अच्छा ना अभी आपको नहीं पता ना कौन सा लोकेशन इक्विलिब्रियम होगा, सो मैं आपको कंसीडर करवाता हूँ, आपको फील करवाते हैं। देखो तो पहले वो वाला सिचुएशन लेते हैं जो पॉसिबल नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, उसका रीजन दूंगा। सपोज करके मैंने आपसे ये कंडीशन रखा यहाँ, अच्छा F1, अच्छा ये Q3 मान लो मेरा पॉजिटिव है तो 3Q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, वो रिपेल करेगा। अच्छा ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अच्छा F इक्विलिब्रियम के लिए F शुड बी इक्वल टू F मैग्नीट्यूड। अच्छा F मैं ये बोलना चाह रहा हूँ किसकी वजह से, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि Q3 पॉजिटिव लिया तो ये अट्रैक्टिव वाला, तो ये वाला, तो ये आपका होगा K Q3 और 3Q। सी मैं साइन क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि साइन के साथ तो मैं डायरेक्शन कंसीडर कर चुका हूं पहले से ही, है ना। अगर साइन नहीं रखना चाह रहे हो तो नेट फोर्स क्या लिखोगे आप, F2 प्लस F1 शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये इधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पहले से ही हो गया, ठीक है। सो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन, देखो साइन आप दो तरह से यूज कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूले में साइन के साथ पुट करो तो आपको डायरेक्शन के साथ आंसर मिलेगा, या फिर आपने क्या करना है कि साइन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन कंसीडर कर लो और फिर उसको मैग्नीट्यूड के साथ फॉर्मूले में पुट करो। अच्छा K Q3 3Q अपॉन ये x², ठीक। अच्छा इससे कितना डिस्टेंस जाएगा Q1 से, तो आप बोलोगे सर ये वाला फोर्स, तो ये बोलोगे K Q3 Q1 अपॉन R प्लस x। See, this is the distance R, so the distance between Q and Q3 will be R plus x. Okay, okay, आपने ये रखा R plus x. अच्छा K से Q3 से K से Q3 चला गया, है ना। अब आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना बेटा, यहाँ से 3Q अपॉन x² इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q अपॉन Q अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैं इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से अगर मेरा जो बन रहा है वो बन रहा है 3Q अपॉन x² इक्वल्स टू Q अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा क्या ये मैथमेटिकली सही है या गलत है? मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। कैसे गलत है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कैसे गलत है थोड़ा सा सोचे। क्यों गलत है? आप बोलोगे कि सर मैथमेटिकली पॉसिबल है, मैं बताता हूँ बेटा। इसका न्यूमरेटर क्या है बेटा, इसका
बड़ा है इसके कंपेयर में। अच्छा इसका डिनोमिनेटर छोटा है। अच्छा डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अच्छा सपोज मैं आपसे बोलूं क्यू का वैल्यू सपोज कर 1 है, क्यू का वैल्यू सपोज कर 1 है, तो ये 3/x² इक्वल्स टू 1/r+x का होल स्क्वायर। ठीक, अगर मान लो मैं x को भी 2 ले लेता हूं, इसको भी 2 ले लेता हूं, तो ये कितना आ गया 3/4 और ये कितना आ गया r+2 का होल स्क्वायर। सी 3/4 देखो इसका न्यूमरेटर जो है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया बड़ा हो गया, ओवरऑल बड़ा। अच्छा इसका न्यूमरेटर इसके कंपेयर में छोटा है और डिनोमिनेटर भी छोटा। अच्छा सिंपल सोचना है यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, सी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या बनता है 3qr+x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू q इंटू x स्क्वायर। क्या ये q से q कैंसिल आउट भी हो गया मान लो, तो ये 3 इंटू r+x का होल स्क्वायर क्या x स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं बेटा, ये देख x में कुछ ऐड हो रहा है उसके बाद स्क्वायर हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली। क्या है नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब आपको ये वाला लोकेशन लग रहा था कि हो सकता है, बट एक्चुअल में नहीं होगा। मतलब कौन सा होगा इधर, ये आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। लेट्स सी, now I am going to put the third charge particle on the line joining outside small charge, magnitude only, outside small charge, magnitude only. Okay, see now I am going to put a third charge particle Q3 at this particular location. Suppose this is x, ये मैंने रखा Q3। अगर ये Q3 पॉजिटिव है तो Q1 इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। किस फोर्स से करेगा, आप लिखोगे KQ3Q/x²। अच्छा 3Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब इधर जाएगा, तो वो कितना जाएगा KQ3 और 3Q। मैं साइन के साथ तो मैं डायरेक्शन कंसीडर कर चुका हूं ना, माइनस के साथ तो फिर माइनस साइन मुझे पुट नहीं करना। ओके अच्छा अब नीचे क्या आ जाएगा r+x, अच्छा r+x का होल स्क्वायर। अच्छा Q3 से K से Q3 से K कैंसिल आउट हो गया। अच्छा Q/x² इक्वल्स टू 3Q/r+x का होल स्क्वायर। देख इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर भी बड़ा है। अच्छा इसका न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर भी छोटा, मतलब ये मैथमेटिकली सही है, मैथमेटिकली सही है। अच्छा दो प्रीवियस एग्जांपल से इस एग्जांपल से आपके पास दो कंक्लूजन है। इफ नोट मार्क करके लिखें, पहला if both charges having same nature, if both charges having same nature, then the equilibrium point for third charge particle will be on the line joining between both charges, on the line joining between both charges। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं, सपोज कि Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं, तो Q3 इस लाइन पे बीच में कहीं Q3 की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। if both charges having same nature, if both charges having same nature, then the equilibrium point for a third charge particle on the line joining between them, on the line joining between them। Second one, not a second point, if both charges having opposite nature, if both charges having opposite nature, then the equilibrium point for third charge particle, then the equilibrium point for third charge particle on the line joining, on the line joining outside small charge, outside small charge magnitude only, outside small charge magnitude only। Okay, so these are the type of examples which are based on Coulomb's law। Okay, let's see, this is the type of, now we have checked whether it is in equilibrium or not। So now if we have to move further, then we have to calculate type of equilibrium also, we have to calculate type of equilibrium also। ओके सो इक्विलिब्रियम कहाँ है ये तो पता है, बट इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, तो उसके लिए मैं आपको फिर से अलग अलग केस बनाता हूँ। लेट्स सी, सपोज कि मैं आपको केस लेता हूँ अलग अलग। एग्जाम्पल पहला लेता हूँ, पहले में मैंने रखा सपोज Q1 Q2 Q3 को मिल रहा है, ठीक।
Q1 Q2 माइनस Q3। ठीक, थर्ड एग्जांपल की बात करता हूं, माइनस Q1 Q2 Q3। फोर्थ एग्जांपल की बात करता हूं तो माइनस Q1 Q2 and minus Q3। See, if both charges having same nature, third वाला का same, both charges having same nature, third वाला different, both charges having opposite nature, third वाला कुछ और। Four possible conditions are over there. So we know if both charges having suppose, चल मैं इसके लिए यहाँ ये वाला छोड़ना, मैं ये नहीं कंसिडर करता, ये वाला तो ऑन द लाइन जॉइनिंग हो नहीं सकता, कहाँ होगा, आउटसाइड लाइन जॉइनिंग ऑन स्मॉल चार्ज होगा ना, सो ये वाला तो अभी मैं थोड़ी देर बाद कंसीडर करूंगा, पहले ये सोचिए। सी Q1 और Q2 as per the previous example which recently we have discussed, on that particular basis if both charges having same nature then the equilibrium point will be on the line joining between them। okay, same nature on them, ये थर्ड पार्टिकल की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इस वाले एग्जांपल के लिए, अभी एक बार मैं इसको थोड़ा सीरियस करता हूँ, इस वाले एग्जांपल के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है कि इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि ये मेन पोजीशन से हम उसको क्या करेंगे, पार्शियली डिस्प्लेस करेंगे, और पार्शियली डिस्प्लेस करने के बाद हम चेक करेंगे कि पार्टिकल की टेंडेंसी वापस सेम पोजीशन पे आने की है तो स्टेबल है, दूर चला गया तो अनस्टेबल है, और मतलब उसको कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा कि आपने ये पार्टिकल है सपोज Q3। अब Q3 के लिए मैं इस डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकता हूं और इस डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकता हूं। सपोज कि Q3 को मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस किया, पार्शियली डिस्प्लेस किया, यहां नेट फोर्स 0 था मान लो Q3। अच्छा, मैंने Q3 को यहां डिस्प्लेस किया तो Q2 क्या चाहता है, इसके पास ना है, Q2 रिपेल करेगा, Q2 क्या करेगा, बट Q1 भी रिपेल करेगा। अच्छा, यहां दोनों सेम थी, बट Q1 का डिस्टेंस बढ़ा, Q1 का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो Q1 का फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब ये वाला फोर्स बढ़ गया, तो ये नेट फोर्स क्या लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं तो इस इधर डिस्प्लेस किया तो Q1 का फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि Q2 का फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन। इफ आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो Q3 क्या होगा, स्टेबल होगा, Q3 क्या होगा, स्टेबल होगा अलोंग लाइन जॉइनिंग। कैसा है, स्टेबल अलोंग लाइन जॉइनिंग। कैसा बेटा, अच्छा मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग देखते हैं, लेट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग कैसे है। अगर Q3 को मैंने यहां डिस्प्लेस किया तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये तो दूर चला जाएगा, मतलब ये तो दूर चला जाएगा। इधर भी ऐसे, अगर मैंने यहां डिस्प्लेस किया तो Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा, Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर चला जाएगा, मतलब ये कैसा है, अलोंग दिस लाइन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया, अनस्टेबल। if both charges having same nature then on the line joining क्या हो गया, स्टेबल, on the line joining स्टेबल और perpendicular to the line joining अनस्टेबल। सपोज करके मैं नेक्स्ट इसी का सेकंड केस जो मैंने बोला था आपसे वो वाला कंसीडर करते हैं। सी, ये अगर आपको मान लो कि Q1 है और ये आपका Q2 है, मान लो Q3 कैसा है, नेगेटिव है, Q3 क्या है, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव है तो अगर मैंने इसको यहां से इधर डिस्प्लेस किया, यहां डिस्प्लेस किया तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, जबकि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स, सपोज करके ये दो, ये लोकेशन है, बीच में कोई रखा है, अब मैंने थोड़ा सा पार्शियल इसकी तरफ झुका दिया तो क्या ये अट्रैक्ट कर लेगा, हाँ ये तो चाहिए, इसकी चाहत ये थी कि Q2 जो चाह रहा था कि Q3 अट्रैक्ट हो और इसी डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट किया तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या हो जाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल। ओके, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, सी परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर मान लो कि मैंने इसको थोड़ा सा यहां डिस्प्लेस किया तो Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना Q1 Q3 को, और Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है।
अगर मैं ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ तो Q1 अट्रैक्ट करेगा, Q2 अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स मतलब जहां से मेन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स ऊपर, अच्छा ऊपर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स नीचे, मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन जो क्या है स्टेबल है। अच्छा कई बार ये होता है कि आपसे टाइम पीरियड पूछता है, आपसे क्या पूछता है टाइम पीरियड। अच्छा एसएचएम करेगा, क्या करेगा एसएचएम करेगा, और एसएचएम का टाइम पीरियड आपको पता है t = 2 पाई रूट m बाई t = 2 पाई रूट m बाई k, वेयरएज m क्या है बेटा, m क्या है, m मास है, क्या है मास। अच्छा k क्या है, k है फोर्स कांस्टेंट, k क्या है फोर्स कांस्टेंट। अच्छा फोर्स को क्या करेंगे हम, जो नेट फोर्स आएगा वो नीचे है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो फोर्स नीचे, इट मींस आपका f = kx होता था माइनस का, क्योंकि अगर आपका x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव में, और अगर आपका x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव में, तभी तो एसएचएम होता था। तो ये एसएचएम के लिए तो आपका जो गिवन फोर्स होगा उसको आप kx से कंपेयर करना माइनस के साथ, तो k जो आएगा उसको आप यहां रखोगे, तो टाइम पीरियड था 2 पाई रूट m बाई k। सपोज करके आपका अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तो अनस्टेबल और न्यूट्रल में क्या आपने डिस्प्लेस पोजीशन पे पार्टिकल वापस आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। किसके लिए टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, किसके लिए, अनस्टेबल और न्यूट्रल के लिए, अनस्टेबल और न्यूट्रल के। सी जब एग्जांपल यार ये सोचना, ये स्प्रिंग है, मैंने एक पार्टिकल को बांध के रखा, मैंने स्ट्रेच किया छोड़ दिया, तो क्या ये वापस आएगा, हाँ वापस ऑब्वियसली आएगा। लेकिन सपोज करिए एक पार्टिकल है यहाँ रखा है और मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, अनस्टेबल है, तो क्या ये वापस आएगा कभी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सपोज करके एक पार्टिकल है यहाँ रखा है, मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, यहाँ नीचे गिर गया, तो क्या ये वापस आएगा, नहीं, तो ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल और न्यूट्रल के लिए टाइम पीरियड कितना, इनफाइनाइट। स्टेबल के केस में एसएचएम करेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे f = -kx कंपेयर करेंगे और t = 2 पाई रूट m बाई k से वैल्यू पुट कर देंगे, t = 2 पाई रूट m बाई k से वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा एक और टाइप का एग्जांपल बनते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम्स, बनता है पेंडुलम प्रॉब्लम्स। सी पेंडुलम प्रॉब्लम कैसे बनता है आपको बताता हूँ थोड़ा सा। दिस इज द टाइप ऑफ एग्जांपल्स, दिस इज द टाइप ऑफ examples of problems which are based on Coulomb's law। सी सिर्फ फोर्स है Coulomb's law, तो बाकी सब तो 11th में आपने पढ़ा है, वेक्टर में ये वो, तो वेरियस क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स है। पेंडुलम प्रॉब्लम कैसे हैं, सी अगर मैं आपको कंसीडर करता हूँ कि सपोज कर कि एक सपोर्टर है, यहाँ से मैंने 2 चार्ज पार्टिकल लिए Q और Q, सपोज कर कि मैंने 2 चार्ज पार्टिकल के लिए Q दोनों को सेम L लेंथ की स्ट्रिंग से हिंज किया और दोनों की नेचर सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो कुछ टाइम बाद इनका लोकेशन कुछ ऐसा होगा। मान लो Q1 और Q2, तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन थी। मान लो ये कौन आया, Q1 ऐसा आएगा, रिपल करेगा तो ऐसे ही होगा, और ये कौन आया, ये Q2 आया, कौन आया Q2 आया। अच्छा ये वाला लेंथ भी आया, तो ये वाला लेंथ भी L, अच्छा ये L। अब क्या हो गया कि Q1 और Q2 जो है, Q1 और Q2 यहाँ ये क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अच्छा Q1 Q2 में से मैं किसी एक का एफबीडी बनाता हूँ, मान लो मैंने Q1 का एफबीडी बनाया, क्या बनाया Q1 का एफबीडी। अच्छा इनका मास मान लो कि m1 m2 है, मास कितना, m1 और m2, मास m1 m2। अच्छा m1 m2 मास है, तो सपोज करके इसका m1 है, तो नीचे कौन लगेगा बेटा, m1g ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे m1g लगा और ये क्या कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है, तो रिपल कर रहा है तो इधर कौन लगेगा, f कौन सा वाला, F1 पे 2 की वजह से बेटा रिपल करेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा ना, और mg नीचे लगेगा। अच्छा इस पे फोर्स इधर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर टेंशन आएगा, कौन आएगा, T1 टेंशन आएगा, कौन आएगा T1 टेंशन आएगा। सपोज इसमें कौन आएगा, T2 टेंशन आएगा, कौन आएगा T2 टेंशन आएगा। अब आपने क्या करना है, इसका एफबीडी बनाया, तो एफबीडी बनाया तो ये क्या बन गया, T1, ओके क्या बन गया T1। अच्छा मान लो कि ये वाला एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, या आपको वर्टिकल के साथ कोई भी एक एंगल दिया हो, अगर ये थीटा दिया तो ये 90 थीटा, ये थीटा तो ये 90 थीटा, डजंट मैटर। अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो T1 का ये वाला कंपोनेंट कौन आएगा बेटा, T1 cos थीटा, और T1 का ये वाला कंपोनेंट T1 sin थीटा। सी अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और ये कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो अगर मैं इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को कंपेयर करूं तो मैं लिखूंगा कि m1g T1 sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट।
इधर से लिखूंगा कि F12 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा T1 cos थीटा। सी अपने पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन। अच्छा वेरिएबल कौन कौन है? तो मेरे पास T और थीटा वेरिएबल है। अरे बेटा Q1 Q2 आपको दिया है, M1 M2 आपको दिया है, लेंथ आपको दिया है, तो आपके पास वेरिएबल कौन है? एक तो T वेरिएबल है और एक आपके पास थीटा वेरिएबल। अच्छा मैं दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करता हूं, मैं दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करता हूं और ऐड करता हूं। सपोज कि मैंने इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया प्लस इक्वेशन 2 को स्क्वायर किया, ऐड किया तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा M1G का होल स्क्वायर प्लस F12 का मैग्नीट्यूड जो था उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा T1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। T1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आइडेंटिटी 1, सो ये क्या बन जाएगा बेटा T1 स्क्वायर। तो यहां से T1 क्या बन गया, तो यहां से T1 बन गया बेटा रूट ऑफ M1G का होल स्क्वायर प्लस F12 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बन गया सिंपली। अगर थीटा चाहिए तो मैं डिवाइड करूंगा, तो ये तो T आया, कौन आया? अगर मान लो कि इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल ये वाला एंगल थीटा 1 है, तो थीटा 1 तो मुझे थीटा 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए थीटा 1। तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, सोच कि अगर मैं क्या कर दूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं तो मेरा T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा sin थीटा बाय cos थीटा और वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू मिलेगा बेटा M1G बाय f ऑफ E, M1G अपॉन F12 बोल देता हूं। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स M1G बाय F12, M1G बाय ऐसे ही मैं Q2 के लिए लगा सकता हूँ, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ Q2 के लिए लगा सकता हूँ सिमिलरली। अच्छा ये तो आपको समझ में आया। अच्छा अब f ऑफ E कितना होगा, बात तो ये भी है कि सर आपने सब कुछ तो हो गया बट हमें f ऑफ E कितना ये भी तो पता हो। यहाँ f ऑफ मतलब f ऑफ E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में नहीं पता ना। अच्छा F12 और F21 तो सेम होगा दोनों के लिए। अरे F12 और F21 सेम हो बट वो होगा कितना, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है थोड़ा सा देख ले। f के लिए कैलकुलेशन क्या करना है सोच। See we have to calculate the value of f of E, we have to calculate the value of f of E। इस पे लगेगा बेटा f of E। अच्छा ये तो नीचे M1G जो भी। अच्छा see अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा जो है थीटा है, ये वाला एंगल कि मान लो कि मैं ये वाला एंगल बोलता हूँ कि मान लो आपसे बोला जाए कि ये जो है वर्टिकल एंगल बना, मान लो कि वर्टिकल एंगल एक थीटा बना लिया इसने यहाँ से थीटा एंगल। ये स्ट्रिंग है, एल लेंथ है, टेंशन T होगा, ये mg होगा, इधर f ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स f ऑफ E होगा। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है f ऑफ E। अच्छा अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है ना। अगर ये वाला एंगल थीटा और ये है, सुनना ये वाला लेंथ L है तो ये वाला डिस्टेंस कितना। अगर मान लो दोनों चार्ज सेम है Q Q M M, जनरली ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा सा टेक्निकल बनाने में पूछता है। ठीक है, अगर ये Q है तो इस पे ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाती है 90 माइनस थीटा, कौन हो गया 90 माइनस। अगर ये L है, ये L है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा L cos 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डायरेक्टली करना L cos थीटा, ये थीटा दिया, अगर ये थीटा दिया तो L cos 90 माइनस थीटा। अच्छा L cos 90 माइनस थीटा कौन है L sin थीटा, L cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया L sin थीटा। अच्छा अगर ये वाला भी L, मान लो कि ये वाला भी L है और ये वाला भी Q सेम है, चार्ज Q है, मास M है, अगर ये भी मास M है तो ये वाला भी कितना होगा L sin थीटा है ना। तो R कितना हो जाएगा 2L sin थीटा, R क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देम। सो f ऑफ E क्या हो जाएगा K Q मैंने Q1 Q2 Q बोला है अपॉन आपका जो R स्क्वायर बोले तो 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो 11th के प्रॉब्लम्स में बेस्ड है ना। सो नाउ we have to move we have to calculate vector form or we have to derive the vector form of Coulomb's law, which is important for board exams. Okay, so vector form of Coulomb's law, vector form of Coulomb's law।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। Vector form of Coulomb's law. Suppose two charged particles Q1 and Q2 are placed at position vector R1 and R2 vector. R1 is the position vector of Q1 with respect to origin O, and R2 is the position vector of Q2 with respect to origin O. So now we have to calculate the interaction force or electrostatic force between Q1 and Q2. Suppose the distance position vector between Q1 and Q2 is मान लो इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम देता हूँ बेटा A और B नाम दे दिया, है ना। सो R1 वेक्टर क्या है बेटा, वही वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है, OB वेक्टर, है ना। और R वेक्टर सपोज कि मैंने इसको बोल दिया R वेक्टर। अच्छा तो R वेक्टर क्या है, R वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोलते क्या है कि OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये कौन है, R वेक्टर है। अच्छा R वेक्टर ये वाला वेक्टर। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फोर्स की बात करें तो फोर्स की क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो F की बात कर लेते हैं। तो F12 कि 1 पे 2 की वजह से या 2 पे 1 की वजह से मैग्नीट्यूड सेम है, बट मैं अभी बात कर लेता हूँ F21 की बात करें, F21 या 12 की जो भी है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा R क्या वेक्टर क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर चाहिए, तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा ये कौन हुआ, ये तो सर अभी तक तो स्केलर क्वांटिटी है, अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो मैं इसको क्या करूँ, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा यूनिट वेक्टर क्या है, सो R क्या है बेटा आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली, magnitude of unit and dimension only or direction only. So it is used to represent direction of any vector. So r cap is always equals to r vector divided by mod of r vector. Okay, so if I am going to put the value of r cap, so k q1 q2 upon r vector into r vector dot r vector upon mod of r vector का स्क्वायर था यहाँ, और एक यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा, mod of r vector का क्यूब हो जाएगा। अच्छा मैं अगर वैल्यू रखना चाहूँ तो k q1 q2, अच्छा r वेक्टर कौन है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. This is the vector form of Coulomb's law. This is the vector form of Coulomb's law. See R2 R1 आपको दिया होगा, R2 R1 आपको दिया होगा। See next if we are going to place this particular set of charged particle in a medium, so the vector Coulomb's law in a medium, Coulomb's law in a medium, Coulomb's law in a medium. Coulomb's law in medium. Suppose charge particle है Q1 and Q2 are placed at a central distance r in air or vacuum. In air or vacuum. एयर और वैक्यूम में रखा है, मींस इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट है। ओके, सो द फोर्स मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका होगा बेटा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बात करूं k की तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो किसमें, जब एयर और वैक्यूम में रखा था। सपोज अगर सेम सेटअप को, if I am going to put the same setup in a media having relative permittivity, it's not, इसको मैंने क्या किया, सेटअप को मीडियम में ले गया, किसमें ले गया, मीडियम में ले गया। मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन r है। सो Q1 Q2 सेम रहेगा, Q1 और Q2 सेम रहेगा। डिस्टेंस भी मैंने सेम रखा, किसमें रख दिया, एक मीडियम में रखा। सपोज एक मीडियम है, इसमें है मीडियम में रखा। अच्छा मीडियम में रखा तो f of E डैश चेंज हो जाएगा, f of E क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अच्छा फोर्स चेंज हो जाएगा
You know, gravitational force does not depends on media, whereas electrostatic force depends on media. This is the basic difference between electrostatic and gravitational force. Gravitational force never depends on, see gravitational force f of g जो था बेटा मैग्नीट्यूड दिया लगता है आपसे, तो आप बोलते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो वहां जो g था बेटा वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट मींस the value of capital G it never depends on media or where you are going to put both mass particles. Okay, so the for whole universe the value of G is same, but whereas the value of K here depends on media in which you are going to put both charged particles. So f of E dash will be क्या हो जाएगा? K dash Q1 Q2 upon R square. The value of K dash क्या हो जाएगी बेटा? 1 by 4 pi epsilon naught and epsilon r Q1 Q2 upon r square. Q1 Q2 upon r square. F of E dash magnitude. So this is the basic difference. This is the basic difference. If we are going to put both charged particles in a media, then force क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा ना बेटा, epsilon r से। और epsilon r क्या है? relative permittivity of that particular media in which we are going to put our charged particle setup. Okay, so till here you have to try to do questions and problems from where you get. Okay, thank you.